Hello students, today we are with the fifth video lesson of Unit 9 Electronic Device of Class 12th Physics, in which we will study about diode as a rectifier. So first thing is we should know what is a rectifier. So rectifier, it is a device which converts alternating current into direct current. बहुत कॉमन डिवाइस है, हम लोग रोज यूज करते हैं अडेप्टर में, मोबाइल चार्जर में, जहां एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं. Then next is rectifier. They are of two type. We know that this is AC, like this sine wave, plus minus plus minus plus minus. So when this AC is passed through rectifier, then the output is a DC. Okay, so simply you can say the rectifier is a device which converts AC into DC. Now there are two ways of converting this AC into DC. In one method, only half wave we get like this, and in another way, we get complete wave converted into DC. Now you can see only plus part is we are getting, and in this case we are getting current only in one direction for both the input half cycle. So this one is half wave rectifier and this one is full wave rectifier, which we will be discussing in detail. Now first thing is, what is the principle of rectifier? So as we all know that this diode, this conducts only in one direction. When it is forward biased, then only it conducts, and when it is in reverse bias, then it do not conduct electricity. So first we will take up half wave rectifier. So in half wave rectifier, only half cycle of the AC is converted into DC. Now let us first draw the circuit. As we all know that our mobile chargers, they work at very small voltage, low voltage. बहुत कम वोल्टेज चाहिए होता है, और हम लोग जो AC यूज करते हैं that is of 220 वोल्ट और 240 वोल्ट. तो सबसे पहला जो डिवाइस हम यूज करेंगे that is to decrease the voltage with the help of a transformer. तो एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और ट्रांसफार्मर के इनपुट पर हम इनपुट प्राइमरी कॉइल पर इनपुट AC दे देंगे. दिस इज द AC. सो दैट what happens in the output, the voltage step down transformer की मदद से वोल्टेज को हम डिक्रीज कर देते हैं. So this is transformer. Now either it is half wave or full wave rectifier. ट्रांसफार्मर जो होगा सबसे पहले कंपलसरी होगा ताकि हम वोल्टेज को कम कर सके, क्योंकि डायोड जो होता है इट इज अ लो वोल्टेज डिवाइस, बहुत थोड़े से वोल्ट पर काम करता है, हाई वोल्टेज नहीं चाहिए. सेकेंडरी कॉइल में वी कनेक्ट अ डायोड, लेट द नेम ऑफ द डायोड बी डी, एंड देन आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, जिसको लोड रेजिस्टेंस RL बोलते हैं. लोड रेजिस्टेंस मीन्स कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, LED, जो भी डिवाइस आप DC से चला रहे हैं. नाउ लेट अस सी द वर्किंग. AC we all know that it becomes plus minus अल्टरनेटिंगली द वोल्टेज चेंजेस. तो जब ये प्लस होगा देन व्हाट विल हैपन, ये प्लस होने पर ये कंडक्ट करेगा डायोड एंड वी विल गेट द करंट लाइक दिस. बट व्हेन दिस इज नेगेटिव इन सेकेंड हाफ साइकिल इट बिकम्स रिवर्स बायस, क्योंकि पी साइड नेगेटिव हो गया. तो जब ये रिवर्स बायस होगा, इन दैट कंडीशन वी विल नॉट गेट एनी करंट. सो इफ वी ड्रॉ द इनपुट वेव फॉर्म, देन द इनपुट वेव फॉर्म इज लाइक दिस. If you draw the input waveform, then the input waveform it is like this, input AC. But the output waveform, you can see the output waveform. We are getting current only for positive half cycle, and negative half cycle में diode reverse bias हो जाता है. That's why we are not getting current. So output we get like this only. दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन, ये भी पूछा जाता है. ड्रॉ द इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म फ्रॉम हाफ वेव रेक्टिफायर. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज द इनपुट वेव फॉर्म एंड दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म. नाउ लेट अस कम टू फुल वेव रेक्टिफायर. इन फुल वेव रेक्टिफायर वी टेक टू डायोड्स, D1 and then diode D2. Two diode they are connected, and then one terminal is taken from two diode. Now see what will happen. When this is positive,
this diode D1 will be forward biased and it will give current like this from here. And when this one is positive, सेकेंड हाफ साइकिल में जब ये नीचे वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव होगा. सो दिस वन विल बिकम रिवर्स बायस एंड दिस डायोड विल बिकम फॉरवर्ड बायस. दिस विल गिव करंट लाइक दिस, इन दिस वे. तो दोनों डायोड से जब भी करंट मिल रहा है उसका डायरेक्शन यही है, सेम. नाउ टू कंप्लीट द सर्किट, थर्ड जो सेकंड वायर हम लेंगे वो सेंट्रल ट्रैप से लेते हैं. ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में 3 पॉइंट्स रहते हैं कनेक्शन के लिए. तो ये वाला जो सेंटर पॉइंट होता है उसको सेंटर टैप बोलते हैं, इस तरह से. एंड देन वी कनेक्ट आउटपुट लोड रजिस्टर लाइक दिस. नाउ यू कैन सी ये कंडक्ट करेगा तो करंट ऐसे आएगा, ऐसे, और ऐसे ये चला जाएगा. और ये जब कंडक्ट करेगा D2 तो करंट ऐसे आएगा और ये ऐसे जाके फिर ऐसे चला जाएगा. सो इन बोथ द हाफ साइकिल द करंट इज इन द सेम डायरेक्शन, दैट इज DC. So there is only difference of one diode. Again, if we are asked to draw the input and output waveform, so input waveform, it is same, plus minus, this is input AC, and the output waveform, it will be now like this. Now since both the diodes, they are conducting, तो जब ये D1 कंडक्ट करेगा तो यहां से करंट मिलेगा, अगले बार में D2 कंडक्ट करेगा नेगेटिव हाफ साइकिल में तो भी करंट मिलेगा, लेकिन डायरेक्शन सेम है. तो वेव फॉर्म इस तरह से ये बन जाएंगे. सो दिस इज द आउटपुट वेव फॉर्म फॉर फुल वेव रेक्टिफायर. नाउ इफ सपोज द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ हियर और 50 हर्ट्ज, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी भी यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर में एफ होती है. लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं ये डबल हो रहा है. सो यू रिमेंबर इट, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज एफ देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 2f. ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनपुट एसी का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो फुल वेव रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिलेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दैट इज 100 हर्ट्ज. नाउ दिस आउटपुट इट इज डीसी, बट यू कैन सी इट इज नॉट अ प्योर डीसी. ये वेरिएंट डीसी है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है, बट द डायरेक्शन इज सेम. ठीक है. एसी में क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होता है, पहले करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर इस तरह से. लेकिन डीसी में करंट की डायरेक्शन सेम है, बट इट इज नॉट कांस्टेंट. सो वी कैन से दैट सम कंपोनेंट ऑफ एसी इज देयर इन द आउटपुट. दिस कंपोनेंट ऑफ एसी इन द आउटपुट इज कॉल्ड रिपल. इसको बोलते हैं रिपल. जैसे पानी में जब पत्थर फेंकते हैं, वी थ्रो अ स्टोन ऑन वाटर सरफेस, तो सर्कुलर वेव्स बनती है, उनको रिपल्स बोलते हैं. सर्कुलर वेव्स मतलब एसी जैसे. तो आउटपुट इज नॉट कांस्टेंट और स्टेडी एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इसको रिपल्स बोलते हैं. तो अगर इसको हमको कांस्टेंट करना है, इफ वी वांट टू मेक इट कांस्टेंट, देन व्हाट वी डू इज वी यूज सम फिल्टर सर्किट. फिल्टर यूज करते हैं. फिल्टर क्या कर देता है, जो भी एसी आ रहा है अनवांटेड एसी, उसको हटा देता है. फिल्टर को हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज वी कैन यूज अ कैपेसिटर. सपोज दिस इज अ रेक्टिफायर, तो आउटपुट यहां से हमको ये मिल रहा है रेजिस्टेंस पर RL, तो कैपेसिटर हम एक पैरेलल में लगा देते हैं. व्हेन वी कनेक्ट अ कैपेसिटर इन पैरेलल और अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, देन इट मेक्स द आउटपुट कांस्टेंट, और ये जो रिपल्स होती हैं खत्म हो जाती हैं. सो दिस इज वन टाइप ऑफ फिल्टर सर्किट. सेकेंड वे इज बाय कनेक्टिंग अ इंडक्टर इन सीरीज. मतलब उसमें क्या करेंगे, कैपेसिटर नहीं रहेगा, यहां पर एक इंडक्टर लगा देंगे सीरीज में ऐसे. ठीक है. तो दीज आर द 2 मेथड्स बाय विच वी कैन फिल्टर द आउटपुट एंड वी गेट प्योर डीसी. दिस इज अ डायग्राम ऑफ एक्चुअल फुल वेव रेक्टिफायर. यू कैन सी द ट्रांसफॉर्मर हियर. इनपुट प्राइमरी में 220 वोल्ट 240 वोल्ट देते हैं. ये 3 वायर है, 2 पर डायोड लगे हुए हैं D1 D2, और सेंट्रल ट्रैप से हमने ये कनेक्शन लिया हुआ है. एंड दिस इज द आउटपुट. 6 वोल्ट का लेड इससे जलेगा. दिस इज अ कैपेसिटर. ये कैपेसिटर किसका काम कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन. डायोड एज अ रेक्टिफायर, इनका सर्किट डायग्राम. प्रिंसिपल इसका यही है कि जो डायोड होता है इट कंडक्ट्स ओनली इन वन डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, इन फॉरवर्ड बायसिंग, विच हेल्प्स इन मेकिंग रेक्टिफायर. थैंक यू.